Student, our next topic is mod. Okay, what is mod? You have already studied in class 9th. Mod can be defined as that particular value which has occurred most number of times, right, in the list, and it is value with highest frequency. A number with highest frequency is known as its mod. Let's take an example. If you have the marks of 10 students and out of 10 suppose 3, 5, 9, 5, 6, 5, 4, 10, 7, 8, like this. Now what will be the mod in this data, in this ungroup data? You can see easily here 5 comes 3 times, which is the highest frequency. So mod for this data, this ungroup data will be 5, right? ऐसे ही find करते आए हैं हम अभी तक. But in 10th class you will study for group data. Okay? When group data is given, then you will find mod. Let's take an example. Let's take first question of exercise 14.2. What is it? The following table shows that ages of patient admitted in a hospital during a year. Age in year given hai, number of patients given hai. Okay, number of patient is what? Frequency, Fy. Now you have to find the mode and mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. Okay. Yes, students, listen carefully. First we have to find mode. Okay. For mode, formula is mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Okay. We have in this we have to find model class. Okay. First step is we have to find model class of the data. Now see the highest frequency, which is highest number in this frequency is 23, means this is our model class. You have to write like this, model class 35 to 45. अगर आप ये लिखना भूल जाते हैं तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, यू हैव टू राइट model class is this. Now what is L over here? L is lower limit of the model class. L is what? Lower limit of the model class. What is the lower limit of model class is 35. So L is 35. What is H over here? H is class size. Class size. It should be same. Okay. What is it? 15 minus 5 is 10. So class size is 10. Now frequencies F1, F0 and F2. Frequency of model class is denoted by F1 and frequency of preceding model class is denoted by F0 and frequency of succeeding model class is F2. Okay. So F1 F0 is, what is F1 here actually? Frequency of model class. That would be equal to 23. And F0 is frequency of preceding model class, which is 21, and F2 is frequency of succeeding model class, which is equal to 40. As you can see, F1 is the highest value in these three.
बिकॉज ये क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, मॉडल सबसे आगे है। अब फॉर्मूला भी लर्न करना बेटा आपको इजी हो जाएगा। कैसे करना है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। एज यू कैन ऑब्जर्व हेयर, F1 सबसे आगे रहेगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कई बार क्या होता है, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, कहीं F2 लिख जाते हैं, कहीं F0, कहीं F1, उनको याद नहीं रहता अच्छे से फॉर्मूला। देखो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आएगा, F1 में से माइनस होंगी एक बार F0, पहले वाली फ्रीक्वेंसी माइनस होगी, और जब दोनों माइनस होंगे F0 और F2 तो F1 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू आएंगी। ये भी प्लस आएगा क्योंकि F1 हमेशा F0 से ग्रेटर होगा, और ट्वाइस ऑफ F1 भी क्या होगा, F0 F2 दोनों से ग्रेटर होगा, तो ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, F2 सबसे लास्ट में आएगा माइनस में, सेकंड 0 1 2, तो 2 सबसे लास्ट में भी आएगा, ऐसे भी याद किया जा सकता है। इनटू H, H क्या है, क्लास साइज। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मोड सबसे इजी है हमारे पास तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन मॉड में। मोड फाइंड करना कुछ हो जाना चाहिए, मोड का क्वेश्चन आते ही पेपर में, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है और फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है हमें। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 35 प्लस F1 क्या था 23 माइनस 21 एंड ट्वाइस ऑफ F1 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस 14 इंटू H, H इज 10। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो 35 प्लस 23 माइनस 21 2 इंटू 23 46 माइनस 21 माइनस 14 कितना होगा, माइनस 35 इंटू 10, it will be 35 plus 2 into 46 minus 31 will be 11 into 10. If you solve it, you will get 20 by 11 is 1.8. Okay, and if you add them, you will get 36.8. Okay, this is the mode of this data. Clear? कुछ नहीं करना बेटा, हमें सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और ये वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ से और फिर पुट करनी है। ओके, इसमें हमें मीन की तरह और टेबल नहीं बनानी, एक्सरसाइज नहीं बनानी, ए नहीं लेना जो मीन के लिए जैसे कॉलम्स बनाने होते थे। मोड में कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनेगा, सिर्फ इसी में हमें ये वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ तो लिखना ही लिखना है, सब डिटेल आपको क्वेश्चंस में लिखना है। मॉडल क्लास लिखना है सबसे पहले, फिर ये सब रिप्रेजेंट करोगे, देन यू हैव टू राइट फॉर्मूला, आफ्टर दैट यू विल पुट in the formula and you will find the value of mod. Hello students, our next question is question number 3rd. बेटा सेकंड क्वेश्चन अपने आप करोगे, कुछ नहीं है इसमें, सेम है सभी क्वेश्चंस। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Okay, सिर्फ मोड फाइंड करेंगे बेटा हम इन क्वेश्चंस में। आप इस एक्सरसाइज में अपनी नोटबुक में सिर्फ मोड सॉल्व कर सकते हो। मेन क्या प्रैक्टिस कर चुके एक्सरसाइज 14.1 में, ठीक है, तो सिर्फ मोड निकाल लेना। ओके, मीन रहने देना क्योंकि वैसे लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चंस बहुत आपके। तो प्रैक्टिस आप 14.1 में कर चुके हो, तो मीन करते हैं। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड मॉडल क्लास विच इज द हाईएस्ट वैल्यू 40. So our model class is this 1500 to 2000. What is L over here? L is 1500. 40 is F1. 24 is F0. And 33 is F2. F1 क्या है? Frequency of model class, right? F1 क्या है? Model class की frequency number 1 है. Okay? और F0 उससे पहले वाली, F2 उसके बाद वाली. Now what was the formula? You have to write yourself. Model class is this, L is this, all details. Okay, model class is 1500 to 2000. What is H here? H is 500, right? Now mod is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is the formula. Now you have to put the values here. L is 1500 plus F1 is
40, F naught is 24, twice of F1, 2 into 40, which is 80, okay, minus F naught is 24, minus F2 is 33 into H, H is 500. Now we have to solve it. Now if you solve it, you will get 1500 plus 40 minus 24 is 16, 80 minus this is 23 na, into 500, okay. So 1500 plus, if you calculate it, you will get, it is 347.83, and after adding them you will get 1847.83. So therefore model monthly expenditure is rupees this. Now students, NCERT क्वेश्चंस में बेटा कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं है. हमें इंटरवल्स कंटिन्यूअस गिवन है और क्लास साइज गिवन है, प्रॉपर इक्वल क्लास साइज गिवन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. तो सिर्फ आप में उसको मॉडल क्लास निकाल के फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है. ओके, नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज योरसेल्फ. नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. वेट इज गिवन. A medical camp was held in a school to impart health education and the importance of exercise to children. During this camp, a medical checkup of 35 students was done. Total students are 35 and their weight were recorded as follows. Weight ऐसे निकालेंगे. You have to find the model weight. We have to find model weight. It means we have to find its mod. Okay. Now you can see कि कैसे डेटा हमें कैसे गिवन है. इंटरवल्स में नहीं है. इट मीन्स हमें इंटरवल्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये हमें क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, टोटल गिवन है. हमें फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास साइज कितने हैं, 2 है. 42 42 से फिर 44 तो 2 का साइज है. तो हम इसके यहाँ इंटरवल बनाते हैं. अगर हम लेते हैं क्लास साइज 38 to 40, राइट, 42 42 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 और 50 to 52. Now number of students given है. Number of students whose weight are below 40 are 3. Means 38 to 40 के बीच में भी कितने हो जाएंगे, 3. Number of students whose weight are below 42 are 5. It means ये 40 वाले भी इसी में है, below 42 में. तो मुझे सिर्फ चाहिए किस इंटरवल वाले, 42 42. मीन्स मैं इनको बिलो 40 वालों को माइनस कर दूं. 5 minus 3 क्या हो जाएगा, 2. ऐसे ही 42 to 44, यानी कि मुझे बिलो 42 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन से चाहिए, 42 से लेकर 44 तक. यानी कि 9 तो कैसे हैं, बिलो 44 सारे, यानी कि 42 वाले भी 40 वाले भी. यानी कि ये 5 वाले अगर मैं 42 बिलो माइनस कर दूं, 9 minus 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 to 44 4. तो हमें क्या करना है, एक्चुअली ऐसे माइनस करते जाना बेटा. ठीक है, हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. नेक्स्ट है 14 minus 9 5, 28 minus 40 40, 31 minus 28 3, 35 minus 31 4. ठीक है, मतलब 38 to 40 वाले कितने हैं, 3, 40 to 42 वाले 2. ऐसे हमने इंटरवल्स में चेंज कर लिया. अब हमारा क्वेश्चन सेम है. अब हमें क्या देखना है, क्या फाइंड करना है, मॉडल क्लास. तो ये मॉडल क्लास होगी क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी की है. इसकी वैल्यू होगी L, ये हो गया F1, ये F0 और ये F2. सो फाइंड मॉड. H is 2, L is 46, F1 is 14, F0 is 5, F2 is 3. Now we have to find model weight. What was the formula? L plus F1 minus F0
2f1 minus f0 minus f2 into h. In each question you have to write formula. Okay. L is 46 plus f1 is 14 minus 5, 28, 5 minus 3 into 2. 14 minus 5 is 9. 5, 3, 8. 28 minus 8, 20. 10. It will be 46 plus 0.9 and answer will be 46.09 kg. Right? Yes. Then hence the modal weight is this. ये स्टूडेंट आप इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं. बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ अलग है नहीं. आपको जब ऐसे इंटरवल में मिल जाए तो कुछ करना ही नहीं, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है. हाँ, इस टाइप में हो तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे. ओके. कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर नोटबुक.